अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 124 से 125 तक। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمین۔ اب ہم اس آیت کو لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَى، یہاں پر دیکھیں زال کے بعد با ساکن ہے، با ساکن پر کلکلا کریں گے اور لام کے اوپر ماد ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَى، وَإِذِ ابْتَلَى ابراہیم، یہاں پر دیکھیں حمزہ کے بعد با ساکن ہے، با ساکن پر کلکلا کریں گے۔ را کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ ابراہیم، ابراہیم ربہ، یہاں پر دیکھیں را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، پھر را کو با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ با کے اوپر شاد ہے، اس کو سختی سے پڑھیں گے۔ ربہ، ربہ بکلمات فأتمہن، یہاں پر دیکھیں جو لفظ ہے بکلمات، اس میں میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ تا کے نیچے دو زیر ہیں یعنی تنوین ہے، اور اس کے بعد فا کا استعمال ہوا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہیں، اس لیے تا پر اخفا کریں گے یعنی ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ اور جو نیکسٹ لفظ ہے فَأَتَمَّهُنَّ، اس میں دیکھیں تا کے بعد میم مشدد ہے، تا کو میم مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور میم مشدد پر غنہ کریں گے، پھر ہا کو نون مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ غنہ کا مطلب ہے ناک میں آواز لے جانا۔ یہاں پر آپ کو چھوٹا سا دعا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ رموز اوقاف کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے، تو جب وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گی، پھر نون کے اوپر زبر نہیں پڑیں گے بلکہ نون ساکن ہو جائے گی اور شد جو ہے یہ ساتھ پڑھی جائے گی۔ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي، قَالَ جو لفظ ہے اس میں قاف کو موٹا پڑھیں گے اور الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے، تو یہ الف مدہ کی مثال ہے۔ انی جو لفظ ہے اس میں دیکھیں حمزہ کے بعد نون مشدد ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے اور یہاں پر بھی دیکھیں یا ساکن ہے، تو یہ یا مدہ کی مثال ہے۔ قال انی، قال انی جاعلک، جاعلک للناس اماما، یہاں پر جو لفظ ہے للناسی اس میں بھی نون مشدد ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے اور امامن یہاں پر لکھا ہوا ہے اور یہاں پر چھوٹی سی دعا بھی ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں میم کے اوپر ہم ایک زبر پڑھیں گے، دو زبریں نہیں پڑھیں گے اور اس کو ہم الف مدہ کی طرح پڑھیں گے۔ کیسے؟ للناس اماما، للناس اماما قال، قال ومن ذريتي، یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد زال کا استعمال ہوا ہے، اس لیے نون ساکن پر اخفا کریں گے، پھر زال کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، را کے اوپر شد ہے اس کو سختی سے پڑھیں گے، پھر را کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے
या के ऊपर भी शद है, इसको भी सख्ती से पढ़ेंगे। और यहाँ पर या साकिन है, या साकिन से पहले ता के नीचे ज़ेर है, तो ये या मद्दा की मिसाल है। इसको एक अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। और यहाँ पर छोटी सी तवा है, यहाँ पर वक्फ करेंगे। वमिन ज़ुर्रिय्यती, वमिन ज़ुर्रिय्यती, क़ाल क़ाल ला यनालु, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। यहाँ पर दाल के बाद देखें या खाली है, अलिफ भी खाली है, लाम भी खाली है। इनके ऊपर कोई हरकत नहीं है, यहाँ पर इनको नहीं पढ़ेंगे, बल्कि दाल को हम ज़ुआ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और ज़ुआ को मोटा पढ़ेंगे। ज़ुआ के ऊपर शद है, इसको सख्ती से भी पढ़ेंगे। और ज़ुआ के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको लंबा करेंगे। अहदिज़ ज़ालिमीन, अहदिज़ ज़ालिमीन। नेक्स्ट आयत पढ़ते हैं। वइज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अतहिरा बैतिय लित्ताइफीन वल्आकिफीन वर्रुक्काइस्सुजूद। अब हम इस आयत को लफ्ज़ ब लफ्ज़ तजवीद के साथ पढ़ते हैं। वइज़ जअलनल बैत, यहाँ पर देखें जो लफ्ज़ है जअलनल बैत, इसमें जीम के बाद आइन है, आइन की हम हलक से अदायगी करेंगे, आइन की जगह हमज़ा नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पर या साकिन है, या साकिन से पहले बा के ऊपर ज़बर है, तो ये यारीन की मिसाल है, इसको नरमी से पढ़ेंगे। जअलनल बैत, जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि, यहाँ पर देखें अलिफ से पहले ता के ऊपर ज़बर है, तो ये अलिफ मद्दा की मिसाल है। ता को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, लाम के ऊपर शद है, इसको सख्ती से पढ़ेंगे। फिर लाम को नून मुशद्दिद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और नून मुशद्दिद पर गुन्ना भी करेंगे। मसाबतल लिन्नासि, मसाबतल लिन्नासि व अमना, यहाँ पर व अमनन लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको छोटी सी दुआ नजर आ रही है। यहाँ पर हम वक्फ करेंगे। वक्फ की सूरत में नून के ऊपर एक ज़बर पढ़ेंगे और इसको अलिफ मद्दा की तरह पढ़ेंगे। व अमना, व अमना वत्तखिज़ू, वत्तखिज़ू मिन मक़ामि, यहाँ पर देखें मीम के बाद नून साकिन है और इसके बाद मीम मुशद्दिद है। यहाँ पर मीम को हम मीम मुशद्दिद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और मीम मुशद्दिद पर गुन्ना भी करेंगे। क़ाफ को भी मोटा पढ़ेंगे और अलिफ से पहले क़ाफ के ऊपर ज़बर है, तो ये अलिफ अलिफ मद्दा की मिसाल है। मिम मक़ामि, मिम मक़ामि इब्राहीम, यहाँ पर देखें हमजा के बाद बा साकिन है, बा साकिन पर कलकला करेंगे। रा के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको भी लंबा करेंगे और इसको मोटा पढ़ेंगे। हा के नीचे भी खड़ी देर है, इसको लंबा करेंगे। इब्राहीम, इब्राहीम मुसल्ला, यहाँ पर छोटा सा आपको तो लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि रमूज़ काफ की अलामात में से है, इसलिए यहाँ पर वक्फ करेंगे। वक्फ की सूरत में हम इसको कैसे पढ़ेंगे? मुसल्ला, मुसल्ला वअहिदना, हा के बाद यहाँ पर देखिए दाल साकिन है, दाल साकिन पर कलकला करेंगे और अलिफ के ऊपर मद है, इसको लंबा करेंगे। वअहिदना, वअहिदना इला इब्राहीम,
यहाँ पर देखें जो लफ्ज़ है इला, इसमें लाम के ऊपर मद है, इसको भी लंबा करेंगे। और इब्राहीम, इसमें भी बा पर कलकला करेंगे, रा को भी लंबा करेंगे, हा को भी लंबा करेंगे, क्योंकि इन दोनों के ऊपर खड़ी ज़बर है। इनको हम खड़ी ज़बर की वजह से लंबा करके पढ़ेंगे। इला इब्राहीम, इला इब्राहीम व इस्माईल। यहाँ पर देखिए मीम के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको लंबा करेंगे। और यहाँ पर या साकिन है, या साकिन से पहले आइन के नीचे ज़ेर है, तो ये या मद्द की मिसाल है। व इस्माईल आतहिरा, यहाँ पर जो लफ्ज़ है इसमें नून साकिन है, नून साकिन पर इख्फा करेंगे। और तहिरा जो लफ्ज़ है इसमें तो को मोटा पढ़ेंगे। अक्सर लोग यहाँ पर तहिरा यानी रा को जल्दी पढ़ देते हैं, इसको जल्दी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अलिफ है। यहाँ पर अलिफ से पहले रा के ऊपर ज़बर है, तो ये अलिफ मद्दा की मिसाल है। इसको एक अलिफ की मिक़दार के बराबर लंबा करेंगे। आतहिरा, आतहिरा बैतिया, बैतिया लित्वाइफीन। यहाँ पर देखें लाम को हम तो के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, तो के ऊपर शायद है, इसको सख्ती से पढ़ेंगे। अलिफ के ऊपर मद है, इसको भी लंबा करेंगे। लित्वाइफीन, लित्वाइफीन वल्आकिफीन। आइन के ऊपर यहाँ पर खड़ी ज़बर है, इसको लंबा करेंगे। और या साकिन है, या साकिन से पहले फा के नीचे ज़ेर है। और यहाँ पर या साकिन है, या साकिन से पहले फा के नीचे ज़ेर है, तो ये या मद्दा की मिसाल है। वल्आकिफीन, वल्आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद। यहाँ पर देखें वाव को हम रा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। अलिफ और लाम यहाँ पर बिल्कुल खाली हैं, इनको नहीं पढ़ेंगे। रा को सख्ती से पढ़ेंगे, फिर रा को हम काफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। काफ के ऊपर भी शद है, इसको भी सख्ती से पढ़ेंगे। वर्रुक्काइस सुजूद, वर्रुक्काइस सुजूद। उम्मीद है आज के लेसन की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।